Okay. First of all, hello everyone. Assalamu alaikum. This is the class of GK. Okay. And the last class we talked Alaikum about salam. okay. In the last class we South talked about the Africa. continent South America. Okay. South Africa. Yes. I give two of you the responsibility of giving me a recap. Okay. It was Shamir and it was Umar. Okay. I'm Umar. asking you soon. Okay. To give me a recap. But first of all, I want all of you to say happy birthday to Wafa. It's her birthday today. Come on, hurry up. Happy birthday, Wafa. Happy Happy birthday to birthday To to you. 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 Happy Happy birthday to birthday to you. you. Thank you, Happy everyone. birthday to Wafa. Okay. Happy birthday. Okay. आप लोग मेरे ख्याल से सिंगर बन सकते हैं सब सही है No, man. okay, you all have very pretty voices. So now I'm going Allah to miss. hello Umar. Okay, so now I'm going to ऐसे mute ही you आप all. I'm going to नहीं नहीं mute नहीं you. मिस मैं अपने आप को खुद म्यूट कर रहा हूँ और म्यूट ना करें Okay, fine. आप लोग अगर खुद से म्यूट कर लेंगे तो ये अच्छी बात है सही है तो अब हमें क्या करना है मैं आज जो हूँ वो दो लोगों से सवाल करने वाली हूँ साउथ अमेरिका के बारे में ओके जस्ट गिव मी अ क्विक रिकैप ओके लेट्स स्टार्ट विद ओके कहाँ गए सारे बच्चे यस यस लेट्स स्टार्ट विद शामिर शामिर व्हाट हैव यू स्टडीड अबाउट साउथ अमेरिका गिव मी एट लीस्ट 3 to 4 points In South America, there was a longest waterfall, Angel Waterfall, and yes there was a longest river called Amazon River, and there was a rainforest that was called Amazon rainforest. okay can you tell me that whether the Amazon River is the largest river in the world or not Not teacher, it was second largest. okay you know what I liked Miss, about all now of you पता है आप लोगों को मुझे आप लोगों के बारे में क्या बात पसंद है कि आप लोग छोटी छोटी डिटेल्स भूलते नहीं question. सही है एंड दैट इज वेरी एक्सीलेंट ओके शामिर थैंक यू नाउ उमर उमर आई वांट यू टू टेल Yes. मी सम डिफरेंट पॉइंट्स ओके Okay. यस Miss, South America, the biggest South American country is Brazil, ओके and Brazil takes over 50% of the 50% of South America. ओके 50% लैंड ऑफ साउथ अमेरिका Yes, ओके उमर मोर देन 50% सही है yes, more or यस and South America has the driest desert, ओके व्हाट इज द नेम ऑफ द Sahara Desert. सहारा रियली उमर नहीं इट स्टार्ट्स नहीं विद सॉरी ए बता रहा हूँ इट स्टार्ट्स विद ए कुछ ऐटा करके एटाकामा डेजर्ट Atacama. Okay. उसका पता नहीं कहना इतना मुश्किल है एटाकामी Okay. Atacama. And how many countries are there in South America? Miss only 12. Okay. There are 12 countries in South America. Okay, Omar. As always, हम कभी disappoint नहीं करते. सही है. Then we talked about the animals. Okay. Just Omar सिर्फ एक animal बता सकते हैं हमें South America का. Miss Jaguar. Okay. Jaguar किससे similars होते हैं? Yes. Anaconda. Okay. Miss, Anacondas. Okay. We talked about. Miss Jaguar एक quick cat है. Yes, jaguars are basically cat, but we can say that they are similar to tigers. सही है जो हमारे tigers है ना उनको भी cat लेकिन वो टाइगर की तरह एकदम वो नहीं है वो जैगुआर स्विम नहीं कर सकते इतना अच्छा टाइगर स्विम भी कर सकते हैं yes automatically थोड़ा सा difference है लेकिन क्या है कि it is one of their kind सही है उन्हीं की type है सही है मींस एक आर्मडिलो भी है उधर okay this was a recap on South America. I'm just showing you the worksheet. Did all of यूरोप भी पढ़ा है ना आप जी did all of you got my the word file that I've sent you on the group? यस मिस मैं तो देख भी लिया मैंने सारा लिख भी लिया
मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ अपने। ओके पॉइंट दिखाऊं मैं इसमें आपको? बिल्कुल। Yes. उसके अंदर मैं दिखाता हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसके अंदर मैं हम इसमें लोग सिर्फ अभी तक 10 सेकंड में ओके आता हूँ। the top 3 continents which we have studied so far, Asia, America and North America, उन वो तीनों जो है वो उस फाइल के अंदर मतलब थे, सही है। Now when we finish the South America, I will send you the file of South America as well. Okay, as long as we complete one file, I will send you that file. Okay, so that you can have a recap. I also, sent you a link of a video. How many of you watched the link of the video that I sent you as a homework? Yes, those who have watched it, just kindly give me a thumbs up. मिस जो आपने कंट्रीज को पढ़ाया ना, उन सबका मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। ओके उमर, वेरी गुड, सही है। तो मैंने आप लोगों को जो है वो कॉन्टिनेंट की एक वीडियो दी थी। आई रियली होप आप वो वीडियो देख लें, सही है, क्योंकि हो सकता है कि मैं उस वीडियो को किसी और इम्पोर्टेंट तरीके से इस्तेमाल करूं, तो बेहतर है कि आप लोग देख लें, सही है। दिस वाज अ हिंट जो कि मैं आप लोगों को आज क्लास में दे रही हूँ। नाउ हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, सही है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिकैप और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काइंडली डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। नाउ first of all, I already told you that by looking at the map of the South America, we can tell which is the largest country. मेरे पास नहीं क्या नहीं है बेटा? मिस, ये रहा। क्या? अगर आपको सही से दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने Okay. सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे तरीके से लिख लिए हैं। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। Okay. Thank you so much. Now, what we are going to do is that we are going to move towards the file that we have studied so far. That I've already told you that this is the map of the South America. You can see that the countries in South America, and the largest country is basically Brazil, and we can see that by looking at the map. Okay. Now, number 2 was the highest waterfall, which is known as the Angel Falls in South America. Okay. This is what the Angel Fall looks like. Then we talk about the world's largest Amazon forest. Okay, it is found in South America. Then we talked about the largest country, that is Brazil. Okay, I show you the picture of Brazil, and this is what the country looks like. Okay, then we talk about the largest city found in South America, and the largest city was ब्राजील। largest city. Who's going to tell me the largest Sao city? Paulo. Sao Paulo. Exactly. Sao Sao Paulo is Paulo. the largest city in Brazil. Then we talk about the biggest Sao island, Paulo. that is Terra del Fuego. That is a Spanish word. It means the land of the fire. Okay. Then we talk about the longest तेरा river. दिल फायर हो गया। Exactly. Then we talk about the longest river, that is known as Amazon Amazon. River. Amazon River की खास बात क्या है Amazon River की, कि अगर हम लोग पूरी वर्ल्ड के सारे टॉप 10 रिवर्स को कंबाइन कर दें तभी Amazon River क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सही है। पानी वाला होगा, पानी Exactly. इसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर होगा, सही है। अगर हम टॉप 10 वर्ल्ड के रिवर्स कंबाइन कर दें तो Amazon will still have more water in it, सही है। This was the quality. Then we talk about the world's driest desert, Atacama, and I told you that why it is called the driest desert, because there are some areas. मिस मैं बताऊं? Yeah, sure. मिस, क्योंकि जब से दुनिया बनी है ना, तो जब से इस एरिया में बारिश नहीं हुई है। एटाकामा डेजर्ट में बारिश ही नहीं हुई है। Yes. पूरे डेजर्ट की बात नहीं कर रहे, बट देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आज तक कभी भी रेन रिपोर्ट नहीं हुई है, सही है। Then we talked about the मिस, मुझे आपसे बात पूछनी है कि जो एटाकामा डेजर्ट है, उसकी जो सैंड सच में ऐसी दिखती है अभी? बिल्कुल, ये ऐसी क्यों दिखती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई है, और जब जो चीज ड्राई होती है वो ऑटोमेटिकली ऐसी दिखती होती है, सही है। Okay, now what we are going to do is that we are going to start with Antarctica. Okay, the continent of Antarctica. Now, okay, South America is done, and I will send you the file of South America on the WhatsApp as well. Okay, if you are done, if the South America is clear, just give me a thumbs up so we can move on. Hurry up. Okay. Okay, so what I wanted to tell all of you is that मैं आप लोगों के साथ जो है वो पिक्चर क्लिक करना चाह रही थी, लेकिन वो मैं कब करूंगी जब आप सब अपने अपने कैमरास ओपन करेंगे,
सही है। तो एट द एंड ऑफ द क्लास काइंडली अगर आप लोग अपने अपने सब कैमरास खोल लें और एक प्यारी सी स्माइल दे दें तो मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर क्लिक कर लूँ सबके साथ। सही है। ओके सो फिलहाल हम लोग अंटार्कटिका की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। सो क्लास के एंड तक हम इस बारे में बात करेंगे। नाउ the continent of America. Okay, sorry, Antarctica. Okay, first of all, the important knowledge on continent of Antarctica is that there are 0 countries in Antarctica. How many countries are there in Antarctica? There are 0 countries. Okay, no country is found in this continent. Why? Because it is one of the coldest and one of the driest continent in the world. सही है. Antarctica is a continent, but we consider it as a desert. Antarctica को क्या consider किया जाता है? Desert consider किया जाता है. Why? Because it is very dry, it is very cold, and no one can live in this continent. That is why अगर जब भी आप deserts पढ़ रहे होंगे ना तो नंबर 1 या 2 के अंदर जो है वो टॉप 3 के अंदर आपको जरूर अंटार्कटिका का डेजर्ट भी दिखेगा. सही है. Now the point, let's move on to point number 2. Okay, by looking at the map of the continent, you can see that you will not find any kind of countries in the on here, but you can see that in the center there's a Antarctica. Okay, Antarctica is closer to the southern region. तो जैसे हमारा जो ओशन है, हमारा साउथर्न ओशन हो गया या जो हमारे साउथ पोल हो गया, जब इस तरह की चीजें क्या होती है अंटार्कटिका के करीब आपको मिलेंगी. सही है ना. Point number 2 is that Antarctica, fifth in size among the world's continent, its landmass is almost wholly covered by a vast ice sheet. सही है. क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोग लाइन वाइज चल रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में. सो द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाज एशिया. ओके, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाज अफ्रीका. द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाज नॉर्थ अमेरिका. फोर्थ वाज साउथ अमेरिका. And automatically the fifth largest continent is Antarctica. Okay, we are going line by line. Okay, so they are saying is that fifth in size among the continents Antarctica stands. Okay, and what they are saying is that कि Antarctica का जो land है ना वो पूरा का पूरा किससे cover होता है? आइस से cover होता है. Are we clear? Okay, now let's move on to point number 3. It is also the world's highest, driest, windiest, coldest and iciest continent. सही है. क्या मतलब इसका कि पूरी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ड्राई, सबसे ज्यादा विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट, आइसेस्ट. तो ये आइसेस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? क्योंकि कोल्ड होने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल द वेदर इज कोल्ड ओवर देयर. सही है. बट इफ यू यूज द वर्ड आइसेस्ट तो उसका क्या मतलब है कि जो कॉन्टिनेंट है उसका पूरा लैंड क्या हुआ हुआ है? आइस से कवर हुआ हुआ है. सही है. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द कॉन्टिनेंट, अगर आप लोग कॉन्टिनेंट पे वॉक करने जा रहे हैं, आप लोग वहां पे गए हैं तो वहां पे आपको लैंड नहीं दिखेगा बल्कि आपको क्या दिखेगा कि एवरीथिंग इज कवर्ड विद आइस. सही है. दैट इज वाई एंटार्क्टिका इज कंसीडर्ड एज अ डेजर्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे आपको, सबसे पहली बात. सही है. यहाँ पे कोई कंट्रीज नहीं मिलेंगी आपको, और क्योंकि ये ड्राई है, विंडीएस्ट है, कोल्डेस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेन नहीं होती और कभी भी कोई भी ऐसी जगह. सही है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे रेन नहीं होती, सही है, जहाँ पे एक कोई अमाउंट ऑफ रेन होती है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे रेन नहीं होती तो वो चीज क्या कहलाई जाती है? वो डेजर्ट कहलाई जाती है. सही है. डेजर्ट की क्या डेफिनेशन क्या होती है? एनी प्लेस विच डज नॉट रिसीव रेनफॉल इज कंसीडर्ड अ डेजर्ट. सही है. क्यों? क्योंकि डेजर्ट क्या होती है? डेजर्ट इज अ ड्राई प्लेस. सही है. यहाँ तक कोई मसला? ओके, नाउ we are moving on. Okay, so that was point number 3, that it is one of the world's highest, driest, windiest, coldest and iciest continent. Okay, now point number 4. It is only surrounded by ocean, that is Southern Ocean, the fourth largest ocean. सही है. जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एशिया की बात कर रहे थे, तो एशिया इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस. सही है ना. हर कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द जो 2 या 3 ओशंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन ओशन. सही है. हमारा एशिया जो है वो इंडियन ओशन के करीब भी है. हमारा एशिया जो है वो जो हमारे नॉर्मल जो हमारे ओशंस है. सही है ना. आपको पता है ना, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. पता है सबको? ओके, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. कौन कौन से ओशंस हैं जरा देखते हैं किस किसको याद है. सही है. आई एम प्रीटी श्योर आप लोग अपने ग्रेड 5 में ये पढ़ के आए होंगे, ग्रेड 4 में. यस हमाद, कैन टेल मी द नेम ऑफ द ओशंस? Teacher, यस हमाद, वी आर लिसनिंग. You know the name of the oceans? Indian Ocean, Indian Yes. Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Yes. Pacific Ocean, and Southern Ocean. Southern Ocean,
और एक और सा रह गया, आर्टिक ओशन। ओके, सो Arctic एग्जैक्टली तो ये क्या होता है, हमारे तीन जो है वो डिफरेंट तरह के ओशंस होते हैं जो हमारे वर्ल्ड के करीब होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो साउथर्न ओशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद ओशन है जो कि कहाँ मिलेगा आपको, अंटार्कटिका के करीब मिलेगा। वाई, क्योंकि मैं आप लोग को एक बात बता चुकी हूँ कि अंटार्कटिका किस रीजन के अंदर मिलेगा आपको, साउथर्न रीजन के अंदर लोकेटेड। ठीक है, दिस वाटर, दिस ओशन इज मोस्टली कवर्ड इन आइस। सही है, दैट इज वाई अंटार्कटिका इज वन ऑफ द coldest places in the world. Say now, point number 5 is that you will not find any kind of human population in Antarctica. सही है, why? Because there are no residents in Antarctica. What's the word residents mean? सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं। सही है, हम लोग पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, मतलब हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं। सही है, इस तरह जो है वो देयर आर नो सच थिंग एज रेजिडेंस इन अंटार्कटिका। वाई? क्योंकि अंटार्कटिका के अंदर किसी भी किस्म की पॉपुलेशन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए वहां पे आपको वहां के रहने वाले कोई लोग भी नहीं मिलेंगे। सही है, अंटार्कटिका के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, आपको रिसर्च स्टेशन मिलेंगे, आपको जो है वो डिफरेंट तरह के पूरी कंट्रीज से दूर दूर से लोग जो है वो अंटार्कटिका के अंदर जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं बेसिकली वो आपको आके मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इस कॉन्टिनेंट को आके स्टडी करते हैं। सही है, तो आपको नॉर्मल लोग वहाँ पे या उनके रेजिडेंट्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। सही है, so if someone asks you the population of Antarctica, you are automatically going to tell me that there are 0 people living in Antarctica. Okay, then we talk about point number 6 is that what kind of animals are found in Antarctica. So जो सबसे ज्यादा famous animals है वो कौन से, penguins है। सही है, why? Because penguins need a very cold temperature to live। सही है, और वो जो है वो आपको किसी भी तरह के और क्लाइमेट के अंदर वो नहीं सर्वाइव कर सकते। सही है, तो इसलिए आपको वहां पे क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो एनिमल्स फाउंड करेंगे आप वो पेंगुइन्स करेंगे। सही है, तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन थी उसकी अंटार्कटिका के ऊपर। सही है, तो वन बाय वन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग मुझे एक एक करके पॉइंट्स बताएं। सही है, सो लेट्स स्टार्ट विद वफा। सही है, क्योंकि वफा की बर्थडे था आज, वफा का हम इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। सही है वफा, वुड यू लाइक टू शेयर वन पॉइंट इन अंटार्कटिका? There are 0 countries in Antarctica. Okay, thank you, Wafa. There are zero countries in Antarctica. Okay, yes, Ali Ahmed. Why are there 0 countries in Antarctica? Because there is very cold weather and you can find only research center there. There is Okay, no residence. okay. Why is Antarctica called a desert? Yes, Omar. Because of Antarctica is one of the driest सही है, places, and yes, Omar, we are listening. and there are only the only animal they found in Antarctica is penguin. Okay, so how do we know if something is a desert? Yes, Shamil. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज डेजर्ट है? Because of the place of dryness, dryness, and there is no population, and there is no one. आई टोल्ड यू वेरी ग्रेट रीजन कि अगर कैसे पता चलेगा हमें कि कोई कंट्री जो है वो डेजर्ट है या नहीं है। आई थिंक तुमने मुझे पहला पॉइंट सही बताया था शामी, बिकॉज ऑफ दी Dryness. टीचर वो इतना वो ड्राइस्ट एग्जैक्टली। और ड्राई, कोई चीज ड्राई क्यों होती है जब वहां पे क्या नहीं होता? टीचर जब वहाँ पे लोग नहीं होते, सॉरी वहाँ पे अगर वहाँ लोग, पे टीचर बहुत बहुत कोल्ड होता है या तो बहुत हॉट होता है। अच्छा, अगर लोग नहीं होंगे तो वो जगह ड्राई होगी। नहीं ओके, जब वहां पे क्या नहीं होती, रेन नहीं होती। सही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या डेफिनेशन क्या होती है डेजर्ट की, कि एनी प्लेस विच रिसीव्स लिटिल रेन, तो उसको हम क्या कंसीडर करवा देते हैं, हम कह देते हैं कि वो प्लेस क्या है, डेजर्ट है। सही है शामिर, एक्सेलेंट बेटा। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट द पॉपुलेशन इन अंटार्कटिका। यस आयशा, हाउ मेनी पीपल लिव इन अंटार्कटिका? यस आयशा।
Teacher, 0. 0? Why? Why do 0 people live in Antarctica? Because the climate is so cold. Exactly, because the climate is very cold. So क्या है कि हर कोई जो है वो उस climate को bear नहीं कर पाता, हर कोई जो है वो इतनी ज्यादा coldness को सह नहीं पाता। सही है, इसी वजह से क्या होता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनिमल्स भी इस तरह के फाउंड होते हैं जो कि कूल वाटर के अंदर रह सकते हैं, जिनको आइस से किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह के लोग, इस तरह के एनिमल्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे। सही है, और आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगी वहां पे, लेकिन आपको लोग मिलेंगे। किस तरह के लोग मिलेंगे? यू विल फाइंड सम रिसर्च सेंटर्स ओवर देयर। सही है, आपको रिसर्च सेंटर्स मिलेंगे पूरी वर्ल्ड में से। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अपने कोई साइंटिस्ट भेजे होंगे, देयर वर सम साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, सम साइंटिस्ट ऑफ फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज। सही है, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू स्टडी दिस कॉन्टिनेंट एंड दे वांट टू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट कॉन्टिनेंट। सही है, like for example in a recent survey, I'm just sharing you the news, okay, which I always do, that what happened is that there was a massive ice block. सही है, क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक था जो कि क्या हुआ था कॉन्टिनेंट के ऊपर आके गिरा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो पेंगुइन्स थी वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में आ गई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि लोग डर रहे थे कि पेंगुइन्स क्या हो जाएंगी, अब एक्सटेंट हो जाएंगी। What's the word extent means? EXTINCT. ओके, हम लोग वर्ड एक्सटेंड कब यूज करते हैं? जब वो एनिमल क्या हो जाए। ओके, आई थिंक उमर वांट्स टू टेल अस। यस उमर, एक्सटेंड किसे कहते हैं? एक्सटिंक्ट उसको कहते हैं जो कोई एनिमल मर जाता है उसकी से क्या कहते हैं, जो उसके से बोन्स वगैरह मिलती हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि डायनासोर वगैरह, लोगों को ये लग रहा था कि वो आइस एज हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या होता है एक्सटेंट हो जाने का? क्या मतलब होता है कि जब वो वर्ल्ड में से पूरी खत्म हो जाती है वो एनिमल्स। सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बात पता होगी कि एशिया किस लिए फेमस है? अपने पांडास के लिए। सही है, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो उसी तरह क्या क्या सीन है कि जो एशिया के अंदर जो पांडास थे वो क्या हुआ था कि ड्यू टू सम एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट उनकी जो पांडास है वो क्या हो जाती है, उनकी आहिस्ते से डेथ होती जा रही थी। सही है, तो अब पूरे एशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पांडा रह गया है। सही है, और जो कि बहुत ज्यादा सिक है, तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करी जा रही है। उसको मतलब एक्स्ट्रा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे रखा हुआ है ताकि उसको कुछ हो ना। सही है, अगर तो वो सिंगल पांडा रह गया, अगर तो उसकी डेथ हो गई, तो पांडास क्या हो जाएंगे, अब एक्सटेंट हो जाएंगे। सही है, आने वाले वक्त में हमारे जो भी फ्यूचर चाइल्ड्स होंगे, जो भी फ्यूचर के लोग होंगे, वो ये नहीं देख पाएंगे कि पांडा कैसा होता है, बट ऑटोमेटिकली दे कैन स्टडी दैट। सही है, यस वफा, डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग? टीचर आप सेकंड वाला क्वेश्चन वापस दिखा दे, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। Wafa, I will send you the file on WhatsApp, don't worry. Okay, okay, but I will show you again, no, don't worry. Yes, Alishba. There are many penguins in Antarctica. Yes, there are many penguins in Antarctica because penguins are animals which lives in cold climate. Okay, so this is what we have studied so far on Antarctica. Okay, and this was the information we have shared. Okay, इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक लिंक दी थी एक वीडियो की। सही है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने सबने अच्छे बच्चों की तरह से देखा है, आप लोगों ने से नहीं देखा, बट अगर आप लोग देख लेते तो आप लोगों को फायदा होगा। सही है, वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर वीडियो है। सही है, जस्ट गो थ्रू इट, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीजें दिखेंगी। सही है, आप लोग जो है वो गो थ्रू करें, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें दिखेंगी उसके अंदर, कोई ना कोई नए पॉइंट्स होंगे। वैसे नॉर्मली आप ऐसी कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ऐसी कोई भी डिफरेंट या कोई यूनिक चीज नहीं होगी जो आप लोगों को पता चले, आप लोग बोले कि वाह हमने तो नहीं पढ़ी। सही है, so now if you have any questions you can ask me, and this was it for today's class. I hope you all enjoyed the class as I try to make it as fun as I can.